Hello everyone. Yes, Peter. Today we are going to start quadrilateral examples of exercise 8.1. Okay. So third example, ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC. AD bisect exterior angle. AD bisect exterior angle PAC. PAC को bisect कर रहा है AD. Okay. And CD is parallel to AB. CD is parallel to AB. Show that angle DAC, this one, and BCA, this one. Angles are equal. Okay. तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 3 से. A B C D P. AB is equals to AC. Okay, बेटा. AB is equals to AC. This implies angle ABC is equals to angle ACB. Is equals to angle ACB. Okay. By रीजन क्या है इसका? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल. अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल PAC is equals to angle ABC plus angle ACB by exterior angle property. Okay बेटा. Next, quality equation number 1. Yes बेटा. Angle PAC is equals to 2 times of angle BCA. Reason behind it, from 1 angle ABC is equals to angle ACB को हमने BCA बोल दिया. तो quality equation number 2. अब क्या गिवन है? AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC. AD है जो बाइसेक्ट करता है कौन से एंगल को? PAC को. बाइसेक्ट मींस टू इक्वल पार्ट में डिवाइड. तो एंगल PAC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ DAC. रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हमने DAC एंगल ले लिया. फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड 2 times of BCA is equals to 2 times of DAC. 2 is cancel out with 2. So angle DAC is equals to angle BCA. और यही आपको प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट कि DAC is equals to BCA. ओके बेटा. अब ध्यान से सुनिए क्या गिवन है? CD is parallel to AB. और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया. तो ये कौन से एंगल फॉर्म कर रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो क्या हुआ? ये ABCD इज ए पैरेललोग्राम. बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस. एग्जांपल्स ध्यान से कर लीजिएगा बेटा. AB is equals to AC given है तो एंगल ABC is equals to एंगल ACB. एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल. एंगल PAC is equals to एंगल ABC plus ACB. रीजन बिहाइंड इट, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. जो बाहर वाला एंगल है वो इंटरनल एंगल की सम के इक्वल होता है. तो 2 टाइम्स ऑफ BCA. यहां पे एक रीजन लिख देना कि AD बाइसेक्ट एंगल PAC. तो PAC is equals to 2 times of DAC from second and third.
second and third. Angle 2 times of angle BCA is equals to 2 times of angle DAC. 2 is cancel out with 2, तो DAC is equals to BCA, और ये alternating triangle form कर रहा है, तो ABCD is a parallelogram. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉरी एग्जांपल नंबर 4. ओके, ये फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं बेटा. क्या है, ये पैरेलल लाइंस गिवन है अपने को, एक ट्रांसवर्सल रेडियस स्मॉल p है, ये L और M पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है. ये A, B, C एंड D है. ओके, इसको हमने P, S, Q, R कॉल कर लिया. Two parallel lines L and M are intersected by a transversal P. ये P ये intersect कर रहा है, ट्रांसवर्सल है. ओके, show that quadrilateral formed by the bisector of interior angle of triangle. क्या है कि ये quadrilateral form हो रहा है. Show that, wait for a while beta, I think some misprint here. Show that quadrilateral formed by is a rectangle. Yes, is of angles, interior angle of triangle is a rectangle. रेक्टेंगल है तो आपको एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है. इनमें से एंगल ए, बी, सी और डी में से एक एंगल आपको 90 डिग्री का प्रूव करना है. अब ध्यान से सुनिए, एंगल PAC is equals to angle ACR, alternate interior angle. L is parallel to M. Okay, half of PAC is equals to half of ACR. What is half of PAC? Half of PAC is equals to angle BAC. Angle BAC. Similarly, half of ACR is equals to ACD. Angle ACD. Angle ACD. Means ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, तो ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. Similarly, अगर हम बात करें, AB is parallel to CD हो गया. अगर हम बात करें सेकेंड वन, ये एंगल और ये एंगल, तो वहां से हम सिमिलरली BC is parallel to AD हो जाएगा. दोनों पैरेलल हो गए बेटा, तो ये पैरेललोग्राम बन गया. अब अपना टारगेट है कि इस एंगल को हमने क्या दिखाना है बेटा? क्या दिखाना है बेटा? वन एंगल को हमने 90 डिग्री दिखाना है. क्या दिखाना है बेटा? 90 डिग्री. तो एंगल PAC प्लस CS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर, हाफ से डिवाइड कर दीजिए. हाफ ऑफ PAC प्लस हाफ ऑफ CES इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180. हाफ ऑफ PAC इज इक्वल्स टू एंगल BAC. एंगल BAC. हाफ ऑफ CES इज इक्वल्स टू एंगल DASC. ऐसे लिखो इसको आप, CAD is equals to 90 degree. Angle BAC plus CAD is equals to this one. So angle A is equals to 90 degree. Angle A is equals to क्या हो गया बेटा? 90 डिग्री. Angle BAC ये वाला पार्ट
एंड CAD ये वाला पार्ट, तो दोनों को मिला के कितने डिग्री बन रहा है बेटा? 90 डिग्री बन रहा है। अगर ये 90 डिग्री बन रहा है वन एंगल किसी पैरेललोग्राम का, तो क्या होने वाला है बेटा? रेक्टेंगल होने वाला है। तो ये सो ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल। उम्मीद कर रहा हूं सभी को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझिएगा। L and M are parallelized and P is a transversal. So angle PAC is equals to angle ACR alternate interior angle. L is parallel to M and P is a transversal. Half of PAC is equals to half of ACR. So BAC is equals to ACD alternate interior angle. So AB is parallel to CD. Similarly, BC is parallel to AD. Okay बेटा, एंगल PAC प्लस एंगल CAS इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर बोल सकते हैं आप इसको। हाफ ऑफ PAC प्लस हाफ ऑफ CAS इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। हाफ ऑफ PAC इज इक्वल टू BAC, हाफ ऑफ CAS इज इक्वल टू CAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ABCD इज ए व्हाट? रेक्टेंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, show that bisector of angles of parallelogram form a rectangle. तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। ABCD is a parallelogram. ओके, अब क्या करना है आपको? इन एंगल के बाइसेक्टर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं बेटा? बाइसेक्टर्स। ठीक है, ABCD is a parallelogram. Wait for a while beta, I'll check this question. Yes, show that bisector of angle parallelogram form a rectangle. क्या फॉर्म कर रहा है? रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। ओके बेटा, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। वेट फॉर a while. ABCD is a yes, ABCD is a parallelogram. Yes, exactly. And bisector of angle is form a rectangle. ये प्रूव करना है कि PQRS एक रेक्टेंगल है। PQRS क्या है बेटा? एक रेक्टेंगल है। ये आपका टारगेट है बेटा। यस, PQRS इज ए रेक्टेंगल। ध्यान से समझिए क्या है क्वेश्चन। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है कि एक एंगल PQRS में 90 डिग्री दिखा देना है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। ओके, और ये एक ओवरऑल क्या थी? पैरेललोग्राम थी। ठीक है, हम बात करते हैं इंट्रायंगल ASD। इंट्रायंगल ASD। ओके, ASD। show that bisector of angles of a wait for a while beta, I'll check this question. Show that bisector of angle of a parallelogram form a rectangle. Yes beta, form a rectangle. अभी ध्यान से देखिए, इंट्रायंगल ASD एंगल DAS प्लस एंगल ADS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल DAS को आप क्या बोल सकते हो? DAS को एंगल हाफ ऑफ एंगल A बोल सकते हो, प्लस
हाफ ऑफ एंगल एडीएस को क्या बोल सकते हो, एडीएस को एंगल डी बोल सकते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ एंगल कॉमन ले लीजिए, हाफ एंगल ए प्लस एंगल डी। ओके बेटा, व्हाट इज एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री, क्योंकि ये इंटीरियर क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। तो एंगल डीएएस प्लस एंगल एडीएस इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 90 डिग्री आ गया। ये हमने प्रूव कर दिया कि कितना आया, 90 डिग्री। इन ट्रायंगल एएसडी एंगल डीएस, डीएस मींस ये ऊपर वाला एंगल प्लस एडीएस ये नीचे वाला एंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल डी। हाफ ऑफ कॉमन ले लिया, हाफ एंगल ए प्लस एंगल डी। व्हाट इज एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन बिहाइंड इट, को-इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल डीएस प्लस एंगल एडीएस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो इन ट्रायंगल एडीएस, इन ट्रायंगल एएसडी एंगल डीएएस प्लस एंगल एडीएस प्लस एंगल, इसको 1 कॉल कर लो, प्लस एंगल डीएसए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, फ्रॉम 1 इन दोनों का आंसर क्या है बेटा, 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस डीएसए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल डीएसए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये एंगल अगर 90 है तो ये भी क्या होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है। तो एंगल पीएसआर इज इक्वल्स टू एंगल डीएसए इज इक्वल्स टू एंगल 90 डिग्री। रीजन बिहाइंड इट, रीजन क्या है बेटा इसका, रीजन है इसका वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक एंगल किसी भी इसका 90 डिग्री हो गया, तो ये पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल हो गया, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। यस, क्लियर है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप इस साइड से भी कर सकते थे, ये एंगल भी ले सकते थे, वो आपकी विश है, जिस साइड से आप चाहें वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और इसी तरह से बाकी एंगल भी क्या हो जाएंगे, 90 90 90 डिग्री ईच अदर। ओके, नेक्स्ट yes beta, theorem number 8, a quadrilateral is a parallelogram if one pair of opposite side is equal and parallel। क्या चीज है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ये इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ए बी सी डी इज ए पैरेलल एंड ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ये दो कंडीशन दी हो तो भी वो क्या है, पैरेललोग्राम। रीजन क्या है इसका, अगर मैं एक डायगोनल बनाता हूं AC, ये प्रूव कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर एक डायगोनल बनाता हूं AC तो दो ट्रायंगल बन रही है, इन ट्रायंगल ABC एंड सेकंड वन इज CDA। DC is equals to AB, sorry, AB is equals to DC, angle this is equals to angle this, so angle 1 is equals to angle 2 and AC is common in both the triangle, common. So triangle ABC is congruent to triangle CDA by SAS rule। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा। कॉन्ग्रुएंट होते ही आप कह दीजिए कि ये जो BC है वो पैरेलल, DA है इक्वल भी है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा बेटा कि ओवरऑल ये कंप्लीट एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम होती है ना, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर ये दोनों क्या है, BC इज पैरेलल टू DA, तो अगर एक कंडीशन है तो दूसरा खुद बन जाने वाला है कंडीशन, इसका प्रूफ है। दोबारा बताता हूँ, ABCD इज पैरेललोग्राम इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। दूसरा हमने पैरेलल करके दिखा दिया, रिक्वायरमेंट नहीं है इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत इजीली आपको समझ आएगा क्या कहने जा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, लास्ट एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ABCD is a parallelogram in which P and Q are midpoints of sides AB and CD. Okay. ABCD
is a parallelogram. P and Q are midpoint of sides AB and CD respectively. Join A to Q and C to P to C. Okay. ABCD is a parallelogram in which parallelogram है तो क्या होने वाला है बेटा? AB is parallel to DC. AB is parallel to DC and AB is equals to DC. Okay. So P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of DC. This implies AP is equals to AP. AP is equals to QC. AP is equals to QC and AP is parallel to QC. Reason behind it, because AB is parallel to DC. इक्वल भी है एक साइड, कौन सी? AP और QC इक्वल भी है और पैरेलल भी है. सो बाय थ्योरम 8.1 जो भी 8.8 जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया थ्योरम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल. सो APCQ इज ए पैरेललोग्राम. यही हमें प्रूव करना था कि APCQ क्या है? एक पैरेललोग्राम है. क्लियर आप सबको? उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ आ गया होगा बेटा. आपको एक्सरसाइज एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करनी है. ओके बेटा.